pancreatic, yes, common hepatopancreatic duct which will open into the duodenum. You can see that this particular region is called as the duodenum. So the common hepatopancreatic duct has been guarded with a sphincter of Oddi, which is very, very, very important. Please note down. Common hepatopancreatic. hepatopancreatic का मतलब क्या होगा बेटा? लिवर और पैनक्रिया का बीच का जो कॉमन डक्ट है. हेपेटो का मतलब लिवर और पैनक्रिया का मतलब आपको तो पता ही है. तो लिवर और पैनक्रिया का जो कॉमन डक्ट है, इट हैज बीन गार्डेड with the sphincter of Oddi. This is very important not only for MCQ but also for the 1 mark question. 1 mark question के लिए sphincter of Oddi के बारे में पूछा जा सकता है. Please note down, or else you can take a screenshot of this particular page. Please note down, all of you. So the common bile duct joins pancreatic duct. You can see again in the diagram. So the common bile duct joins the pancreatic duct to form the hepatopancreatic duct, which will open into the duodenum, and the opening of hepatopancreatic duct has been guarded by the sphincter of Oddi. Is that very clear? ये डायग्राम देखने के बाद आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा कि sphincter of Oddi कहां पर है. Clear? Shall I move on to the next page? Yes, miss. Now this point we have already seen yesterday. Now today we will learn about the next digestive gland called as a pancreas. Now pancreas is a very, very, very important gland because I will tell you why it is so important. सबसे पहला point is it is the second largest gland. First largest कौन था? Liver. तो liver के बाद जो second largest gland है that is the pancreas. कहां पर present है? हमारे stomach के नीचे, हमारे stomach के नीचे और duodenum के बाजू में. You can see this position. इसके ऊपर क्या present है? हमारा stomach present है. So it is present near the duodenal loop. Loop मतलब ये जो बन रहा है ना, C shape जो बन रहा है, it is called as a duodenum loop. Got it all of you? So it is a cream colored heterocrine gland. This is a very, very important point again, once again. हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको? हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं? Because it's a mixed gland or it is a dual gland. So please note down, as it is a mixed gland or a dual gland, mixed gland or dual gland. हेट्रो का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग चीजों से मिक्स होके बना हुआ. तो इसीलिए इसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल सकते हैं और डुअल ग्लैंड भी बोल सकते हैं. Now question arises कि why we are calling it as a heterocrine gland or a mixed gland or a dual gland? The answer to the question is this is the only gland of our body which is working as both exocrine as well as endocrine in nature. ये एक ऐसा ग्लैंड है, सिर्फ एक लौता ऐसा ग्लैंड है हमारे बॉडी का जो दोनों काम कर सकता है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी इन नेचर है. अब आप मुझे पूछोगे कि मैम ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस क्या है? तो आई विल टेल यू. एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? एक्सोक्राइन का मतलब होता है those glands which are secreting their secretion directly into the duct. जो डक्ट में या पाउच में अपना सिक्रीशन डालते हैं, जो डक्ट या पाउच में अपना सिक्रीशन डालते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा स्वेट ग्लैंड, हमारा स्वेट ग्लैंड, स्वेट पोर्स होते हैं, स्वेट पोर्स में स्वेट ग्लैंड सिक्रीट होता है. हमारा टीयर ग्लैंड, हमारे टीयर ग्लैंड आंखों के ही पास है, उसमें सिक्रीट होता है. हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा यहीं पे सिक्रीट होता है ना, मतलब जिसको एक पर्टिकुलर लोकेशन है, एक जगह है, वो वहीं पे सिक्रीट होता है, उसे हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, जिसका सिक्रीशन एक्सोक्राइन है. एक्सो मींस बाहर. नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है जो अपना सिक्रीशन कोई डक्ट या पाउच में नहीं डालते, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है.
Therefore, endocrine gland can also be called as a ductless gland. Why ductless glands? Because they are not secreting their secretion into a duct or a pouch. ठीक है, फिर वो लोग अपना सिक्रीशन किधर डालते हैं? So all the endocrine glands are pouring their secretion into the blood. ब्लड के अंदर डालते हैं. So please note down, all endocrine glands are secreting or pouring their secretion directly into the blood. तो endocrine glands में बहुत सारे हैं. 12th स्टैंडर्ड में यू आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल अबाउट ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता देती हूँ. पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है. थायराइड ग्लैंड तो आपने बहुत कॉमन सुना होगा, जिसको देखो आजकल थायराइड का प्रॉब्लम होता है. तो थायराइड ग्लैंड जो नेक में होता है, ठीक है. एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है, ठीक है. देन टेस्टिस, ओवरी, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. पर ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का खास बात क्या होता है बेटा, कि सारे के सारे अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं. अब ब्लड में सर्कुलेशन में घूमते घूमते वो बराबर अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो भी सिक्रीशन होता है उसे हम हार्मोन्स कहते हैं. हार्मोन, ठीक है. दीज हार्मोन्स आर सर्कुलेटिंग इन द ब्लड. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ. लेट अस से टेस्टिस इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेस्टिस. टेस्टिस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है. और वो जो हार्मोन बना रहा है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहा है, ठीक है. तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इट इज कंट्रोलिंग द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल. मतलब मेल के अंदर उसके वजह से, मेल बॉय के अंदर उसके वजह से मूंछ और दाढ़ी आती है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से. अब देखो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो ब्लड में तो सब जगह घूम रहा है. सब जगह घूम रहा है कि नहीं? वो बॉय की बॉडी में, उसके हाथ में भी जा रहा है, उसके पैर में भी जा रहा है, उसके लिवर में भी जा रहा है, किडनी में भी जा रहा है. हाँ, सब जगह जा रहा है, हेयर में जा रहा है, एवरीवेयर जा रहा है. पर वो अपना अपना इफेक्ट कहाँ पे दिखा रहा है? ऑन द फेशियल एरियाज फॉर फॉर्मेशन ऑफ मुस्टैच एंड द बियर्ड. समझ में आया मेरी बात? तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी हार्मोन्स होते हैं, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो लोग अपना सिक्रेशन ब्लड में डालते हैं. पर वो ब्लड में घूमते घूमते बराबर टारगेट ऑर्गन पे वो अपना इफेक्ट दिखाता है. तो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल टेस्टिस का दिया, वैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का दिया. वैसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो. थायरॉक्सिन हार्मोन ले सकते हो. देयर आर मेनी हार्मोन्स. Got it all of you? So exocrine अलग होता है, endocrine अलग होता है. Exocrine are secreting their secretion into a duct or a pouch. और वो एक लिमिटेड उनका एक लोकेशन होता है. जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसा कोई लोकेशन नहीं होता है. दे आर सिक्रेटिंग डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड थ्रू द ब्लड इट इज गोइंग टू द टारगेट ऑर्गन. समझ में आ गया इतना सबको? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ठीक है. अच्छा, अब whatever glands we are having in our body, कोई भी जो ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में, या तो वो एक्सोक्राइन होंगे या तो वो एंडोक्राइन होंगे. पर सिर्फ पैनक्रिया ही एक ऐसा है जो दोनों भी काम करता है. एक्सोक्राइन भी है नेचर में और एंडोक्राइन भी नेचर में है. सो इट इज द ओनली ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी विच इज अ मिक्स्ड ग्लैंड और अ डुअल ग्लैंड और अ हेट्रोक्लाइन ग्लैंड, बिकॉज द टीएस इज मेड सच दैट जब हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा उसके कुछ रीजन जो है वो एक्सोक्राइन का काम करता है और उसका कुछ रीजन जो है वो एंडोक्राइन का काम करता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. वो भी आपको पढ़ना है कि कौन सा पार्ट एक्सोक्राइन और कौन सा पार्ट एंडोक्राइन है. ठीक है. तो अब आप सब लोग इस डायग्राम पे कंसंट्रेट करो. ऑल ऑफ यू सी दिस डायग्राम, डोंट डू द रीडिंग पार्ट. अब हमने ये डायग्राम कैसे बनाया बेटा? हमने इसको कट किया. टीएस का मतलब क्या मैंने कल आपको समझाया था? ट्रांसवर्स सेक्शन. तो आप देख सकते हो कि ये पैनक्रिया है और उसको इस ऐसे कट करके, इतना छोटा सा ग्रीन कलर का कट करके हमने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. तो हमें क्या क्या नजर आया बेटा? देखो, आपको ये साइड साइड में व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो फूल के जैसा दिख रहा है. सनफ्लावर के फूल के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सबको? ये जो सनफ्लावर के फूल के जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दे आर कॉल्ड एज अ पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स. क्या कहेंगे उसे हम? पैनक्रियाटिक लोब्यूल. देखो, बायो में लोब्यूल का मतलब क्या होता है? कोई पाउच के जैसा स्ट्रक्चर. तो ये जो फूल के जैसा स्ट्रक्चर आप सबको नजर आ रहा है ना, जो व्हाइट और येलो कलर का है,
ये जो आजू बाजू में नजर आ रहे हैं, ये जो फूल के जैसे स्ट्रक्चर्स है, दे आर कॉल्ड एज अ पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स. And pancreatic lobules can also be called as acini, A-C-I-N-I, acini. Pancreatic lobules can also be called as the acini. और यही जो फूल के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसे मैं पैनक्रियाटिक लोब्यूल भी कह सकती हूँ, जिसे मैं एसिनाई भी कह सकती हूँ, दे आर वर्किंग एज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया. समझ में आया? तो दीज एसिनाइज, वेयर आई एम मूविंग द कर्सर, ये जो डक्ट यहाँ पे लेबलिंग दिया है, देखो बेटा यहाँ पे डक्ट लेबलिंग दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है पैनक्रियाटिक एसिनाइज. ये जो पैनक्रियाटिक एसिनाइज है जो आजू बाजू में हमें नजर आ रहा है, ये जो पार्ट है जो फूल के जैसा दिख रहा है, हमें फ्लावर के जैसा दिख रहा है, यही एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया है. सो प्लीज नोट डाउन, पैनक्रियाटिक एसिनाइज आर एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया. ठीक है, प्लीज नोट डाउन. पैनक्रियाटिक एसिनाइज, एसिनाई का स्पेलिंग आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे स्क्रीन पे. पैनक्रियाटिक एसिनाइज आर द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया. एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया. दिखा इतना बेटा? Yes, miss. अच्छा, अब देखो, आप अगर आप एसिनाई को देखोगे ध्यान से, तो उसमें आपको डॉट 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 स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं. तो वो जो डॉट डॉट है वो क्या है? एक एक सेल है, एक एक सेल है ना. ये अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ही काउंट करी कर्सर में, देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग समथिंग है ऐसा. तो मतलब हर एक पैनक्रियाटिक एसिनाई में एसिलार सेल्स प्रेजेंट है. क्या है इसको हम क्या बोलेंगे? एक एक को क्या बोलेंगे? एसिनार सेल. सो राइट डाउन, पैनक्रियाटिक एसिनाई आर मेड अप ऑफ एसिनार सेल्स. Pancreatic acini are made up of acinar cells. Which secretes alkaline pancreatic juice. Which secretes alkaline pancreatic juice. Which secretes alkaline pancreatic juice that contains various digestive enzymes. That contains various digestive enzymes. समझा बच्चा? Yes, miss. ठीक है, अब देखो ये जो फूल फूल के जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इसको हमने पैनक्रियाटिक एसिनाइज बोला. उसके अंदर एसिनार सेल्स हैं और ये लोग क्या बना रहे हैं? पैनक्रियाटिक जूस बना रहे हैं. और ये पैनक्रियाटिक जूस बहुत ज्यादा डाइजेशन में मदद करता है. ठीक है, तो ये अब हम आगे फिजियोलॉजी टॉपिक में पढ़ेंगे कि हाउ दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हेल्पिंग इन द डाइजेशन. अभी वी आर लर्निंग ओनली द स्ट्रक्चर. ठीक है, तो आपको सबको एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया समझ में आ गया. अब हम क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया, कि वो कहां पर है. तो आप देख सकते हो कि इन बिटवीन दीज एसिनाइज अ ग्रुप ऑफ सेल. एक ग्रुप ऑफ सेल दिख रहा है ना, पूरा बंच ऑफ सेल दिख रहा है, ग्रुप ऑफ सेल दिख रहा है जो ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू, ब्लू वायलेट कलर का, आपको पर्पल कलर का बीच में दिख रहा है सेल्स. So in between these acini there is a group of cells and these group of cells are called as islet of Langerhans. आप इसको islet भी बोल सकते हो, islet भी बोल सकते हो, whatever you pronounce. ठीक है, so please note down, in between the acini there is group of cell. There is group of cell in between the acini. There is group of cell called, you can see the spelling beta from here, called as islet of Langerhans.
called islet of Langerhans. ठीक है, उसको आप अंडरलाइन करो अच्छे से, islet of Langerhans को अच्छे से अंडरलाइन करो. और वहां पे ब्रैकेट में लिखो, islet of Langerhans के ब्रैकेट में लिखो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया. तो देखो आपको समझ में आ गया, एसिनाइज एक्सोक्राइन है और ये जो ग्रुप ऑफ सेल है जिसे हम islet of Langerhans कहते हैं, these are the endocrine part of pancreas. ठीक है, अच्छा अब आपने इतना लिख लिया. अब islet of Langerhans को 3 ब्रांच बनाओ, 3 पार्ट में डिवाइड करो. जहां पे आपने islet of Langerhans लिखा है ना बेटा, उसको 3 ब्रांचिंग करो, 3 ब्रांचिंग करो. So as you can see on the screen also beta, with 3 different colors it has been shown. एक लाइट ब्लू कलर के सेल्स दिखेंगे, फिर आपको डार्क ब्लू कलर के सेल्स दिखेंगे और कुछ पर्पल कलर के सेल्स दिखेंगे. इसका मतलब ये islet of Langerhans में 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं. तो आपने 3 ब्रांचिंग किया ना बेटा, तो राइट डाउन. फर्स्ट ब्रांचिंग में लिखो अल्फा सेल्स. अल्फा सेल्स स्पेलिंग बेटा आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. अल्फा सेल्स, then beta cells and delta cells. Alpha cells, beta cells and delta cells. अल्फा के लिए आप अल्फा वाला साइन भी डाल सकते हो, बीटा के लिए बीटा वाला साइन भी डाल सकते हो. डेल्टा वाला साइन पता है कैसे होता है बेटा? एस शेप करके ऐसा टर्न होता है, एस शेप करके ऐसा टर्न. सो डेल्टा सेल्स. और यू कैन जस्ट राइट डाउन द स्पेलिंग आल्सो, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा. Alpha you can see over here in the diagram, you can see that which has been shown with a dark blue color. डार्क ब्लू कलर से आपको दिख रहा है कि अल्फा सेल्स दिख रहे हैं, लाइट ब्लू कलर से आपको बीटा दिख रहा है और पर्पल कलर से आपको डेल्टा सेल्स दिख रहा है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि तीनों सेल्स क्या क्या. अभी देखो ये एंडोक्राइन है तो क्या बनाएगा मुझे बताओ, हार्मोन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा. बनाएगा. तो ये हॉर्मोन्स बनाएगा. तो अब ये याद रखो बेटा कि अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स एज दे आर एंडोक्राइन दे विल बी प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स. तो लेट अस लर्न कि कौन से हॉर्मोन्स बनते हैं. तो अल्फा सेल्स के नीचे लिखो विच हार्मोन इज बीन प्रोड्यूस्ड. सो अल्फा सेल के नीचे क्या लिखोगे, कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन स्पेलिंग आई विल शो यू. ग्लूकागॉन का स्पेलिंग आएगा क्या बेटा आपको? GLUCAGON. GLUCAGON ग्लूकागॉन. बीटा सेल के नीचे लिखो, बीटा सेल के नीचे लिखो इंसुलिन हार्मोन. इंसुलिन, इंसुलिन. और डेल्टा सेल के नीचे लिखो सोमैटोस्टैटिन. सोमा, SOMATOSTATIN. मैं वापस रिपीट कर रही हूं. डेल्टा सेल के नीचे यू आर राइटिंग सोमैटोस्टैटिन. SOMATOSTATIN. सोमैटोस्टैटिन. अब लेट अस अंडरस्टैंड कि ये हार्मोन्स का काम क्या क्या है. तो फर्स्ट हार्मोन मैंने आपको क्या बताया, अल्फा सेल्स क्या बनाता है? ग्लूकागॉन हार्मोन बनाता है. अब ये ग्लूकागॉन क्या काम करता है बेटा? ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन. इंसुलिन के बारे में तो आप सबको पता होगा ना. हैव यू हर्ड अबाउट इंसुलिन हार्मोन? आपने Yes, सुना है yes. कौन से बीमारी पे Yes. काम पे आता है? बताओ मुझे. डायबिटीज. डायबिटीज. अच्छा, पर देखो बच्चा लोग, अभी आप लोग यहाँ पे क्या रॉन्ग कर रहे हो. डायबिटीज सिर्फ नहीं बोलना है आपको, 2 टाइप का डायबिटीज होता है. डू यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज. कौन से डायबिटीज पे इंसुलिन लगता है ये आपको पता होना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट. ओके, आई विल टेल यू. हाँ बोलो बेटा. टाइप 2 डायबिटीज. ओके, आई विल टेल यू द नेम ऑफ दैट डायबिटीज. इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन. इंसुलिन हार्मोन में होता क्या है? अच्छा, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? लेट मी अंडरस्टैंड हाउ मच यू नो. इंसुलिन हार्मोन क्या करता है बेटा? एनीबडी नोज?
इंसुलिन का क्या काम है हमारे बॉडी में? ये आपको पता है कि ये डायबिटीज बीमारी में दिया जाता है, पर इसका काम क्या है हमारे बॉडी में? इंसुलिन काम क्या करता है हमारे बॉडी में? Controls the sugar level. कंट्रोल्स द शुगर लेवल। तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है शुगर लेवल हमारे बॉडी में? अगर ज्यादा भी हो गया शुगर तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा क्या शुगर अगर ज्यादा हो गया तो? सोचो सोचो। सी बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स दैट कि आपने ना मोस्टली पार्ट है ना रट्टाफाई किया है, मोस्टली इन योर 9th और 10th स्टैंडर्ड, ऐसा मुझे लगता है। बट इन योर 11th एंड 12th ना ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, ऐसा डे टू डे लाइफ से उसको कोरिलेट करोगे ना तो बायो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सिर्फ ऐसा अभी जैसे मैंने आपने रट लिया है कि हाँ इंसुलिन है वो डायबिटीज के लिए होता है, पर आपने कभी सोचा है कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है शुगर लेवल इन अवर बॉडी? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? हैव यू एवर थॉट? थोड़ा सोचो जरा। Gayatri is telling either doesn't produce insulin or resist insulin. Yes, that is what is called as a diabetes. मैम अगर इंसुलिन कम होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम होएगा बेटा? क्या क्या प्रॉब्लम होता है बच्चा? कैसे प्रॉब्लम होगा और क्या प्रॉब्लम होगा? आप तो मुझे अब वो ऐसा वाला आंसर दे रहे हो कि इंसुलिन कहाँ है तो बॉडी में होता है, ऐसा वाला आंसर मत दो, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। मैम इम्यूनिटी को डाउन। अच्छा, इम्यूनिटी कम हो जाता है। अभी कोरोना के टाइम पे सबको इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छा लग गया वर्ड, है ना? मैम दैट्स व्हाई ज्यादा डायबिटीज वालों को ज्यादा रिस्क है। अच्छा, इसीलिए ओके, डायबिटीज वालों को रिस्क होता है। अच्छा, आपने कोरोना के टाइम पे सुना है, यस वेरी गुड, कि जिसको डायबिटीज होता है उसका इम्यूनिटी और वीक हो जाता है। Gayatri is telling cells are unable to use glucose as a fuel. No beta, that is second type of diabetes. हाँ बोलो बेटा। किडनी डिजीजेस। अयो ये किडनी डिजीज है? नहीं नहीं नहीं, किडनी डिजीज नहीं है। तो देखो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ रट्टाफाई किया है सारे कंसेप्ट को, है ना? अच्छे से उसको समझ के नहीं पढ़ा है, सिर्फ रट्टाफाई किया। जैसे डायबिटीज सुनोगे, इंसुलिन सुनोगे, बस उसके आगे पीछे कुछ नहीं समझने का। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, यू शुड नो द कंसेप्ट बिहाइंड इट। सबसे पहला पॉइंट, जैसे आपने कभी गुलाब जामुन वगैरह खाया है तो उसका वो चाशनी देखा है बेटा? वो कैसा Yes, होता ma'am. है, गाढ़ा होता है कि नहीं? हाँ अगर कोई चीज है, मैं आपको सिर्फ ऐसे नॉर्मल चीजें ही बोल रही हूँ जो डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है बेटा। सी, अगर आप पानी में बहुत शक्कर मिलाते जाओगे तो वो पानी कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं? उसका आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर आप कोई पानी के अंदर बहुत शुगर मिलाते जाओगे तो उसका आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। एंड आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट एट ऑल गुड फॉर अवर बॉडी। ठीक है, अगर हमारा आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हमारे सारे सेल्स श्रिंक हो जाएंगे एंड ऑल द सेल्स विल डाई। आपको एक ये चीज समझ में आया मैंने क्या बोला? सो हमारे बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर का बराबर बैलेंस होना चाहिए। इस बैलेंस का ध्यान देने के लिए हमारे पास किडनी होता है। किडनी क्या करता है? हमारे सॉल्ट और वाटर को बराबर से बैलेंस करके रखता है। कैसे करता है? आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक दिन में बहुत पानी पिया तो आप बार बार यूरिनेशन को जाओगे, और उसी दिन अगर आपने कम पानी पिया तो आप बहुत कम बार यूरिनेशन को जाओगे। तो ऐसा क्यों होता है? अपना किडनी बराबर से वाटर के लेवल को बैलेंस करता है। अगर आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो वो एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालेगा बाय यूरिनेशन, पर अगर आपने कम पानी पिया तो कम बार यूरिनेशन जाओगे। तो हमारे पास किडनी है जो सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को रखता है। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द टॉपिक। नाउ लेट अस कम बैक टू द शुगर बिकॉज वी आर लर्निंग इंसुलिन ओवर हियर। सी, पैनक्रिया secretes insulin hormone. ये जो इंसुलिन हार्मोन है इट विल रेगुलेट अवर शुगर इन अवर बॉडी। एक्स्ट्रा शुगर को वो नॉर्मलाइज करेगा।
समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहीं शादी में गए और आपको स्वीट डिश बहुत पसंद आया, आपने गुलाब जामुन भी खा लिया, रसगुल्ला भी खा लिया, ये वो सारा मीठा खा लिया एक ही दिन में, बहुत पसंद आ गया, तो क्या आपको दूसरे दिन तकलीफ होती है उसकी? मतलब जो लोग डाइजेस्ट कर पाते हो तो ठीक है, पर क्या इतना शुगर खाने के बाद कोई दूसरे दिन मर जाता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज अपने बॉडी में अपना इंसुलिन बैठा हुआ है, हमारा पैनक्रिया उस दिन ज्यादा इंसुलिन बनाएगा क्योंकि हमने ज्यादा शुगर खाया। समझ में आया? आप जिस दिन बहुत शुगर वाला चीज खा रहे हो, जिस दिन आपको मम्मी ने आपका फेवरेट कुछ स्वीट डिश बना दिया, आप उस दिन बहुत बहुत खा रहे हो, इसका मतलब उस दिन आपने अपने पैनक्रिया को काम पे लगाया है, उस दिन आपका बॉडी में इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट होगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो फॉर बैलेंसिंग द शुगर in your body, because sugar will disturb the ionic balance of our body, so to balance the sugar in our body, our insulin hormone takes place the role. If we eat more of sugar, more of insulin will be produced. If we are not using more of sugar, less amount of insulin will be produced. So insulin kitna produce hona chahiye, that depends upon the sugar intake of our body. ठीक है? सो दैट इज इन अवर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि हम सब लोग नॉन डायबिटिक हैं। अब हम चलते हैं उस पेशेंट की तरफ पे जो डायबिटिक है। अब डायबिटिक में भी मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज। सो आई एम टॉकिंग अबाउट डायबिटीज मेलाइटस, मेलाइटस MELLITUS, डायबिटीज मेलाइटस MELLITUS। So what happens during diabetes mellitus ना, पैनक्रिया में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। अब पैनक्रिया में बीटा सेल्स खराब हो गया, जैसे कोई मशीन है, ये काम करना बंद हो गया। जो लोग भी डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं, उनका पैनक्रिया का बीटा सेल इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। अब क्या प्रॉब्लम हो गया? अब इंसुलिन बन नहीं रहा है, पर वो तो शुगर खा रहे। अब शुगर जरूरी नहीं कि आप शक्कर ही खाओ, आप चपाती खा रहे हो उसमें भी शुगर होता है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू फॉर्म ग्लूकोज इन अवर बॉडी। मैंने आपको पहले ही बताया। आप राइस खा रहे हो, वो भी अंदर जाने के बाद ग्लूकोज बनने वाला है। आप पोटैटो खा रहे हो, उससे वो भी अंदर जाके ग्लूकोज बनने वाला है। तो आपको समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं कि शक्कर खाओगे तभी शुगर होगा। whatever food you are eating, that is also going to convert into glucose in your digestive system. So what happened in a diabetes mellitus patient, ki because insulin has been not formed, what happened? The sugar level will rise, and this rise in the sugar level will imbalance the ionic concentration, which will damage the cell. ठीक है? धीरे 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 क्या होने लगेगा? सारे ऑर्गन्स के कुछ कुछ सेल्स डैमेज होने लगेंगे, क्योंकि आयोनिक इम्बैलेंस हो गया है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आयोनिक इम्बैलेंस होगा ना, तो सेल क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एक्सोप्लाज्म। So what will happen कि सेल विल स्टार्ट डिटोरिएटिंग, डिटोरिएटिंग मतलब डैमेज होने लगेंगे धीरे धीरे। इसीलिए डायबिटिक के पेशेंट्स को ज्यादा रिस्क होता है कोई भी बीमारी का, कोई भी, सिर्फ कोरोना ही नहीं बेटा, कोई भी बीमारी अगर डायबिटिक पेशेंट को है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज जो बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, दैट इज गोइंग टू डैमेज द सेल्स ऑफ द ऑर्गन। तो ऑर्गन्स धीरे धीरे, सारे ऑर्गन, सिर्फ एक ही ऑर्गन है, क्योंकि ये शुगर तो सब जगह घूम रहा है ना सर्कुलेशन में, तो ये सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। तो उनका ऑलरेडी बॉडी बहुत ही कमजोर होता है, इसीलिए कोरोना जल्दी से अटैक करता है डायबिटिक पेशेंट को। समझ में आया? ठीक है? इज दैट क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि इंसुलिन इज गोइंग टू अफेक्ट द इम्यूनिटी सिस्टम। हाउ इम्यूनिटी सिस्टम बिकम्स वीक? बिकॉज ऑल द ऑर्गन्स आर ऑलरेडी बिकमिंग वीक बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है? तो चलो, लेट अस कम बैक टू द पॉइंट वंस अगेन। सो मैं क्या बता रही थी? ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन दोनों मिलके हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते। तो यू कैन पुट अ कर्ली ब्रैकेट, you can put a curly bracket for glucagon and insulin, put a curly bracket and write down controls blood sugar level, controls blood sugar level, controls blood sugar level. Then what is the role of somatostatin? So below somatostatin write down inhibits, inhibits का मतलब क्या होता है बेटा? रोकना, inhibits
glucagon and insulin secretion. Inhibits glucagon and insulin secretion. अब ये क्यों जरूरी है? Now you can also give me the answer. अगर ज्यादा इंसुलिन बनने लगेगा बेटा तो सारा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि इंसुलिन का काम ही है कि ग्लूकोज को रेगुलेट करना। तो एक पॉइंट पे आके कोई तो कंट्रोल करने वाला चाहिए ना, कि नहीं अब बस, अब ग्लूकोज बराबर हो गया है, अब ज्यादा इंसुलिन नहीं बनना चाहिए। तो ये कौन करता है? ये सोमैटोस्टैटिन करता है। समझ में आया मेरी बात? Yes, all of you have understood. So just imagine कि कितना परफेक्ट अपने बॉडी में, we all are normal. तो आप जस्ट इमेजिन करो, एक इससे एक आप एग्जांपल ले लो कि हमारे बॉडी में कितना हर एक चीज परफेक्टली हो रहा है। There is an on and off mechanism. जैसे आपके घर में आपको फैन चाहिए तो आपने ऑन किया, नहीं चाहिए तो आपने ऑफ किया। सेम थिंग ओवर हियर, इंसुलिन जितना चाहिए उतना सीक्रेट होगा, नहीं चाहिए सोमैटोस्टैटिन रोल में आएगा। सोमैटोस्टैटिन will inhibit the glucagon and insulin secretion. Got it, all of you? So this point is very, very important, both for your NEET exam as well as for your 11th standard. So again, I will repeat it once again. I will repeat all the points. Just check whether you have written nicely and properly. We are talking about pancreas. It is a leaf-like structure which is present below the stomach. Okay? It is a somewhat creamy color. Pancreas is a heterocrine gland. It can also be called as a mixed gland. It can also be called as a dual gland because it is both exocrine as well as endocrine in nature. Let us first talk about the exocrine part of pancreas. Exocrine part of pancreas is made up of pancreatic lobules which are called as acini. The acini are made up of acinar cells which secretes pancreatic juice. This pancreatic juice contains different types of digestive enzymes. Correct? All of you have noted down this much. Then let us talk about the endocrine part of pancreas. The endocrine part of pancreas is made up of group of cells which are present in between these acini. This group of cells are called as the islet of Langerhans. This islet of Langerhans shows three different types of cells, as the alpha cells which secretes glucagon hormone, beta cells which secretes insulin hormone. Both glucagon and insulin are helping in maintaining our blood sugar level, and delta cell which is secreting somatostatin which is secreting the inhibiting the glucagon and insulin level. Got it, all of you? सबको इतना समझ में आ गया? I hope I have tried my level best to make you understand this much part. Now you can see over here the exocrine part of pancreas. It secretes the alkaline pancreatic juice. And what are the enzymes present in it? So please note down. जहाँ पे आपने exocrine part of pancreas लिखा है ना बच्चा, तो आप ये enzymes के नाम लिख लो। उसमें कौन कौन से enzymes होते हैं? Trypsinogen, chymotrypsinogen, and procarboxypeptidase, amylase enzyme, lipase enzyme, and nucleases enzyme. Again बच्चों ये याद रखो, 98% enzymes, 98% enzymes जो होते हैं ना, उनके लास्ट में सफिक्स होता है ASE. समझा मेरी बात? 98% एंजाइम्स के लास्ट में सफिक्स होता है। सफिक्स मतलब ऐड होता है ASE. तो जब भी आप लास्ट में ASE देखोगे ना, समझ जाना कि वो एंजाइम है। जैसे अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियसेस, मतलब ये सब एंजाइम है। ये सब भी एंजाइम्स है। ये जेन आएगा ना बेटा, याद रखना, जेन आएगा मतलब ये प्रो एंजाइम है। अगर वर्ड जेन रहेगा ना, मतलब आप समझ जाना कि ये प्रो एंजाइम है, इससे एंजाइम बनेगा। प्रो एंजाइम मतलब मैंने आपको बताया था जिससे एंजाइम बनता है, जिसको हम जाइमोजेन भी बोलते हैं, जाइमोजेन। ठीक है, अब जैसे ट्रिप्सिनोजेन से क्या बनने वाला? ट्रिप्सिन बनेगा। काइमोट्रिप्सिनोजेन से क्या बनेगा? काइमोट्रिप्सिन बनेगा। पर देखो अब ये भी एंजाइम है, पर लास्ट में ASE नहीं लगा है, इसीलिए मैंने बताया कि 98% एंजाइम में लास्ट में ASE होता है, सिर्फ 2% एंजाइम में लास्ट में ASE नहीं होता है। तो उस कैटेगरी में आता है ये ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन। समझा?
चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। अच्छा, अब ये इंटेस्टिनल ग्लैंड समझने के लिए लेट मी फर्स्ट मेक यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। Yes, now TS आपको समझाना पड़ेगा, then only you will understand the intestinal glands. In your textbook on page number 164, TS has been given. TS histology of alimentary canal. Okay, तो कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम हो, जैसे कि हमारा स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट सेम लेयर से बना है, सेम लेयर्स, which are that 4 layers. The very first layer is mucosa, उसके बाद है सब म्यूकोसा, उसके बाद है मस्कुलरिस, उसके बाद सबसे बाहर का लेयर इज सेरोसा। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो बाहर सेरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा, सॉरी सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। अगेन आप देख सकते हो, जैसे अभी हमारा मैं अभी ये फॉर एग्जांपल एक स्टमक का है या फिर एक एलिमेंट अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा ट्यूब शेप का है ना, ऐसा हॉलो पाइप के शेप का है। तो जब मैं उसको कट करूंगी तो मुझे ऐसा गोल सेक्शन मिलेगा। कैन यू इमेजिन ना बेटा, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हमारा ये हॉलो स्पेस है ना, ऐसा हमारा इंटेस्टाइन ऐसा है ना, ऐसा हॉलो है ना बेटा, तो जब मैं इसको ऐसे कट करूंगी तो मुझे ऐसा गोल सेक्शन मिलेगा ना, तो गोल सेक्शन ये मिला मुझे। तो बाहर का लेयर है सेरोसा, उसके अंदर है मस्कुलरिस, उसके अंदर है सब म्यूकोसा, फिर है अंदर म्यूकोसा। समझ में आया ये कैसा हुआ सेक्शन? मतलब ये जो म्यूकोसा वाला जगह है तो आपको इसमें लुमेन दिखेगा। लुमेन का मतलब बायो में होता है स्पेस, लिख लो, बायो का लैंग्वेज है। लुमेन का मतलब ऐसा होल, जैसा अभी मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे अपने हाथ से, आप देख सकते हो ना बेटा, इसको बोलोगे आप लुमेन, जहां से कोई चीज अंदर जा सकता है। तो ये लुमेन रहना जरूरी है ना, तभी तो फूड मटेरियल आगे आगे भागेगा ना, आगे आगे कंडक्ट होगा। सो सबसे पहले मैं बाहर से अंदर ही शुरू करती हूँ, तो आई विल गो विद द सेरोसा फर्स्ट। तो सेरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमोज एपिथेलियम। यू विल बी लर्निंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, बट अभी के लिए इतना समझो कि एक स्क्वैमोज एपिथेलियम से वो बना है, एंड दैट स्क्वैमोज एपिथेलियम इज कॉल्ड एज अ मेसोथेलियम। ठीक है, स्क्वैमोज एपिथेलियम बहुत ही पतला लेयर होता है जिससे कि कोई भी चीज अंदर जा आ सकता है। ठीक है, सो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, serosa is the outermost layer which is made up of squamous epithelium, and this squamous epithelium is called as a mesothelium. ठीक है, और इसका अंदर वाला लेयर कनेक्टिव टिश्यू से बना है। फिर थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखो आप अंदर चलेंगे तो आपको क्या दिख रहा है बेटा? आपको मस्कुलरिस लेयर दिख रहा है। अब ये मस्कुलरिस भी आप देख सकते हो कि उसमें 2 लेयर्स है। मस्कुलरिस मतलब मसल से बना है। कौन से 2 टाइप के मसल से बना है? सर्कुलर मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल मसल। अब आप मुझे बताओगे कि ये मसल का काम क्या होगा? चलो बताओ मुझे क्या काम होगा इस मसल का यहाँ पे, चलो बताओ फटाफट, इस मसल्स का क्या काम होगा? कोई तो मूवमेंट में मदद करता है। चलो मैंने आपको पेरिस्टालिसिस। शाबाश, वेरी गुड, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। स्टमक में भी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हो रहा है, इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट हो रहा है मतलब मसल्स की जरूरत है ना, बिना मसल्स के कैसे मूवमेंट होगा? समझ में आया? तो मस्कुलरिस में सर्कुलर मसल्स होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल होते हैं, एक और मसल होता है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑब्लिक मसल। ऑब्लिक मसल, ऑब्लिक मसल। तो 3 टाइप के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल, लॉन्जिट्यूडनल मसल एंड अंदर वाला, सबसे अंदर वाले को हम ऑब्लिक मसल्स बोलते हैं। ये जो लेयर्स है ना, ये स्टमक में थोड़ा बड़ा होता है, वाइड होता है, और इंटेस्टाइन में थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा पतला होता है ये लेयर, और स्टमक में थोड़ा लेयर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्टमक में भी क्या होता है? ग्राइंडिंग होता है। मैंने आपको बताया था कि स्टमक स्टोरेज भी करता है, प्लस स्टमक में भी फूड इधर से उधर जंप करता है, और स्टमक के अंदर भी फूड पार्टिकल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है। समझा? इसके लिए स्टमक के अंदर मस्कुलरिस लेयर थोड़ा मोटा है और स्मॉल इंटेस्टाइन में मस्कुलरिस लेयर थोड़ा पतला है। ठीक है, oblique muscle is absent in intestine.
ऑब्लिक मसल इज एब्सेंट इन इंटेस्टाइन. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, प्लीज डू अंडरस्टैंड. मस्कुलरिस लेयर is present both in stomach and intestine. In stomach, there are 3 layers: circular muscles, longitudinal muscles, and oblique muscles. Because of these 3 layers, the stomach layer has become thick. But in intestine, there are only 2 layers, circular and longitudinal. Oblique is absent in intestine. Therefore, the layer is very thin. काम एक ही है. काम क्या है? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करवाता है. ठीक है. अब हम और अंदर चलते हैं. ये पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का रीजन आपको दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा. म्यूकोसा के नीचे है, इसलिए इसका नाम है सब म्यूकोसा. ठीक है. ये म्यूकोसा का क्या, सब म्यूकोसा का काम क्या है? यहाँ से ब्लड सप्लाई जा रहा है, नर्व सप्लाई जा रहा है टू द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन. तो सब म्यूकोसा का काम क्या है? सप्लाई ऑफ ब्लड एंड नर्व. अब हम सबसे अंदर चलते हैं, दैट इज अ म्यूकोसा लेयर. अब आप म्यूकोसा में क्या देख सकते हो बेटा? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसा फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन दिख रहा है ना बेटा आपको. अब फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन जो है ना, इसी को हम बोलते हैं विलाइज. क्या बोलते हैं इसको? विलाइज. विलाय, ऐसा जो फिंगर के जैसा होता है ना, उसे हम बोलते हैं विलाय. ये जो विलाइज होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. सरफेस एरिया बढ़ गया ना, आप देख सकते हो ना कि अपने उंगलियों का सरफेस एरिया ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न. ठीक है. सो म्यूकोसा में बिकॉज ऑफ दिस विलाय, विलाय, द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड. तो प्लीज नोट डाउन, द विलाय, द म्यूकोसा कंटेन्स द व्हाट? विलाय लाइक स्ट्रक्चर्स. विलाय मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स. इसके अंदर म्यूकस लेयर होगा, गॉबलेट सेल्स होगा, दैट आई विल टीच यू आफ्टरवर्ड्स. ठीक है. अगर हम स्टमक की बात करेंगे, स्टमक के, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इन स्टमक इट इज थ्रोन इनटू इरेगुलर फोल्ड्स. व्हाट वाज कॉल्ड एज दैट? स्टमक में अंदर के इरेगुलर फोल्ड्स को मैंने क्या बताया था? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. चलो बताओ मुझे. रुएज, RUGAE बताया था ना, याद है? स्टमक के अंदर जो लेयर्स है उसे हम रुएज कहते हैं. और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज बोलते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या बोलेंगे? इसे विलाइज बोलेंगे. अब ये जो विलाइज है ना, वहां पे क्या होता है? इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं. ये विलाइज के अंदर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, जहां पे इंटेस्टिनल जूस बनता है. अब आपको समझ में आया स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया? तो अब मैं ये स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी ना, तब आपको समझ में आएगा. वेट. ओके. सो देखो, अब ये क्या है? आपको क्या डायग्राम दिख रहा है? दिस आर द विलाइज, जो मैंने आपको फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन बताया. दिस आर द विलाइज. ठीक है. सो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में 2 टाइप्स होते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कुन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड. प्लीज नोट डाउन. Intestinal glands has 2 glands, crypts of Lieberkühn and the Brunner's gland. The crypts of Lieberkühn's contains the goblet cells. Again, please note down bio में कहीं पे भी अगर ये goblet cells होंगे तो उनका एक ही काम है, म्यूकस सिक्रीट करना. नोट डाउन. ये कॉमन चीज है ना बेटा, अगर आप याद रखोगे ना हमेशा, तो बायो बहुत इजी हो जाएगा. विलाय जहां पे भी होगा, फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन. गॉबलेट सेल कहीं पे भी होगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा. ठीक है. सो क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कुन में क्या है? गॉबलेट सेल्स है. आप देख सकते हो यहाँ पे गॉबलेट सेल्स. व्हाट दे आर सिक्रीटिंग? दे आर सिक्रीटिंग द म्यूकस. और साथ में देयर इज वन मोर, Paneth cells, which are secreting the different types of enzymes. Which enzymes are secreted? We will be learning afterwards. Next is the Brunner's या फिर duodenal glands. Brunner's gland या ये जो देखो आप देख सकते हो नीचे की तरफ है ground structure. They are confined to the submucosa of duodenum and secretes again the mucus only. आपको एक और स्ट्रक्चर बीच में नजर आ रहा है, लैक्टियल. अब ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यहीं पे. लैक्टियल क्या है? ये लैक्टियल के बारे में लेट मी टेल यू. स्मॉल इंटेस्टाइन से जब भी फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इट इज लुकिंग मिल्की वाइट इन अपीयरेंस. तो मिल्की वाइट अपीयरेंस की वजह से इसका नाम लैक्टियल पड़ा है. लैक्टियल मींस रिलेटेड टू द लैक्टोज. लैक्टोज मतलब मिल्क, मतलब मिल्की अपीयरेंस.
So villi are supplied with a network of capillaries, lymph vessels, and which are called as the lacteals. You can see lymph hai, blood vessels hai. You can see the pattern how it has been arranged. Understood, all of you? Any doubt? Anybody is having any doubt? किसी को नहीं समझा है? मैं वापस repeat करती हूँ इसको, इतना points को. I've told you कि in stomach and in intestine there are 4 layers. Outermost serosa, which is outermost layer made up of squamous epithelium called as a mesothelium, as well as there is a connective tissue. Next layer muscularis. Muscularis मोटा रहता है in stomach और पतला रहता है in small intestine. Stomach में 3 लेयर से बना है, circular muscle, longitudinal muscle, oblique muscle. Intestine में सिर्फ 2 लेयर से बना है, circular and longitudinal, इसलिए वो thin है. काम क्या है? पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट. फिर आता है सबम्यूकोसा लेयर. सबम्यूकोसा के अंदर ब्लड सप्लाई जाता है, नर्व सप्लाई जाता है. लास्ट में आता है म्यूकोसा लेयर. म्यूकोसा के अंदर विलाइज है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. ठीक है. अब इस स्टमक के अंदर बहुत सारा फोल्ड्स है. फोल्ड्स को हम, स्टमक का जो फोल्ड्स है उसे हम रूवेज कहते हैं, और इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे विलाइज प्रेजेंट है. समझ में आ गया? अब विलाई के अंदर हमने लैक्टियल भी पढ़ा. व्हाट इज दिस लैक्टियल? लैक्टियल जब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, देन इट गिव्स अ मिल्की व्हाइट अपीयरेंस कॉल्ड एज अ लैक्टियल. तो लैक्टियल के आजू बाजू यू कैन सी देयर इज अ लिम्फ वेसल प्रेजेंट, देयर इज अ ब्लड वेसल प्रेजेंट. Then we have understood the intestinal gland. So intestinal glands में 2 glands हैं, crypt of Lieberkühn and the Brunner's gland. Crypt of Lieberkühn के अंदर goblet cells होते हैं जो mucus secrete करते हैं. Pannette cells होते हैं जो अलग अलग enzymes बनाते हैं. Brunner's gland या फिर duodenal नाम है उसका, नाम ही duodenal है, मतलब वो duodenum से थोड़ा touched है. तो वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ mucus बनाता है. समझ में आया? Understood? Yes. Yes, miss. Yes. Now you can take a screenshot or you can just note down. ये हम बाद में भी वापस पढ़ेंगे, पर अभी भी लिख लोगे तो अच्छा रहेगा. तो अब ये मैंने बताया कि पैनेट सेल जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है. तो कौन कौन से एंजाइम्स है? तो लिखो. इंटेस्टिनल जूस को एक और नाम से जाना जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट. सी एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हम आपको सिंपल नाम से ही पूछे, आपको अलग नाम से भी पूछा जा सकता है. तो इंटेस्टिनल जूस को सक्कस एंटेरिकस भी कहा जाता है. सक्कस एंटेरिकस, प्लीज नोट डाउन. Intestinal juice can also be called as succus entericus, which contains different enzymes. अभी देखो सारे enzymes में ASE लगा है. maltase, lactase, sucrase, dipeptidase, lipase, nucleotidase, nucleosidase. So please note down. Intestinal gland secretes the alkaline. यहाँ पे भी अल्कलाइन है. देखो कितने लोग अल्कलाइन है. बाइल जूस भी अल्कलाइन था, पैनक्रियाटिक जूस भी अल्कलाइन था, इंटेस्टिनल जूस भी अल्कलाइन है. तीनों अल्कलाइन है. सिर्फ एसिडिक कौन था? कौन एसिडिक था? सिर्फ गैस्ट्रिक ग्लैंड ही एसिडिक था. सलाइवा क्या था? सलाइवा क्या था? एसिडिक था कि अल्कलाइन था? सलाइवा क्या था? जल्दी बताओ. आई वांट फटाक से आंसर. सलाइवा वाज एसिडिक और अल्कलाइन? यस. नो वन इज आंसरिंग मी. बताओ बेटा फटाफट. कितना था पीएच? सलाइवा का पीएच मैंने आपको कितना बताया था? सलाइवा का पीएच कितना बताया था बेटा मैंने? यस जानवी, गायत्री, नोबडी इज आंसरिंग मी. सब लोग सो गए क्या? 6.7. 6.7 बताया था. 6.7 बताया था मैंने. कितना बताया था सलाइवा का? टेल फास्ट. आई विल नॉट टेल यू. मैं अभी एक बार जो पढ़ाया मीन्स आपको वो पूरा पढ़ के होना ही चाहिए. व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा?
I have told you orally only. Tell me fast. 6.2 to 7.0. तो मतलब 6.2 minus 7.6. एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक 6.2 है तो एसिडिक है बेटा, न्यूट्रल बेसिक है? कितने के नीचे हम एसिडिक बोलते हैं? कौन से नंबर के नीचे हम कोई भी चीज को एसिडिक बोलते हैं? कम को एसिडिक हाँ, 7 से कम को एसिडिक 7 के नीचे, यस 7 के नीचे हम कोई भी चीज को एसिडिक बोलते हैं, 7 के नीचे। तो आपने 6 बोला है तो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा बेटा? Acidic. Acidic. स्लाइटली एसिडिक यस, इट विल बी एसिडिक। तो देखो सलाइवा भी एसिडिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड तो एसिडिक है ही से, और बेसिक क्या क्या है? बेसिक मतलब अल्कलाइन। अल्कलाइन क्या क्या आया अल्कलाइन में? बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, तो देखो अभी आप यहाँ पे भी अच्छी तरह से देख सकते हो, इस डायग्राम से आप समझ पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइन है, और ये इंटेस्टाइन का देखो ऐसे अगर हमने इसको कट करके निकाल